कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, my name is Khurshid Anwar Qasmi and I'm your online English teacher and trainer. Today in this video lecture, I'm going to teach you unit number 21 of Essential English Grammar. And in this unit, we will learn about present continuous tense passive voice and present perfect tense passive voice. So, for making understand this chapter, I have already written everything on the whiteboard, and now you will have to write from the whiteboard into your notebook, and you should understand what I am going to make understand you in this unit. As you can see on the screen, there is written is being done versus has been done. Is being done is a present continuous tense passive voice and has been done is a present perfect passive voice, and both topic I have already taught you in my book Muntakhab Angrezi Grammar Part 1. If you want to study more, then you should open my book Muntakhab Angrezi Grammar Part 1 chapter number 21 for present continuous tense passive voice and chapter number 36 for present perfect passive voice. Dear students, if you want to know what is called present continuous tense passive voice in Arabic grammar, so I have written here fi'al hal istimrari majhul. And what is called present perfect passive voice in Arabic grammar, so I have written here fi'al mazi qareeb majhul. Here I have also written the definition and symbol and structure and examples of both tenses. As you can see here, I have written the definition means tarif. So here I have also written tarif, definition of present continuous tense passive voice. If you want to know what kind of sentences is called present continuous tense passive voice, so here is a definition. कोई काम किया जा रहा है लेकिन करने वाला मालूम नहीं. If you are talking about any action that is being done but the doer of the action is unknown, अगर आप किसी ऐसे काम काज के बारे में बात कर रहे हैं जिससे ये समझ में कोई काम कोई फ़िल किया तो जा रहा है लेकिन करने वाला मालूम नहीं है, तो डियर स्टूडेंट्स उस वक्त हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस को यूज करते हैं. और जब भी कोई काम किया जा रहा है तो एक न एक वक्त में वो ख़त्म हो जाएगा, और जब वो काम ख़त्म हो जाए और उस ख़त्म शुदा काम के बारे में जब आप बात करें तो उसके लिए तारीफ मैंने लिखा है कि कोई काम किया गया है लेकिन करने वाला मालूम नहीं है. कोई भी काम कर दिया गया है, कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसका करने वाला मालूम नहीं है. सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर दिस मीनिंग वी कैन यूज present perfect tense passive voice. Okay, how you can know that this sentence is present continuous tense passive voice और this sentence is present perfect passive voice? आप ये कैसे समझेंगे कि उर्दू और हिंदी जुबान का ये जुमला present continuous tense का है या फिर present perfect tense के passive voice का है? तो उसके लिए हमें अलामतों की ज़रूरत पड़ती है. तो मैंने यहाँ अलामतें भी लिख दिया है. present perfect पैसिव वॉइस की अलामत है या गया है, ई गई है, ए गए हैं. अगर कोई जुमला आपके सामने नजर आ रहा है जिसमें ये अलामतें पाई जा रही है तो आप आंख बंद करके उस जुमले को प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस तस्वुर कीजिए. जैसे जैद मारा गया है, मारने वाला कौन है मालूम नहीं, यहां पर रा गया है. ठीक है, किताब पढ़ाई गई है, यहां ई गई है पाया गया है. वे लोग बुलाए गए हैं, जुमले के आखिर में गौर करें तो ए गए हैं पाया गया है. लिहाजा ये तमाम जुमले प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस के होंगे. और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने कोई ऐसा जुमला नजर आ रहा है जिसमें ये अलामत पाई जा रही है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस की है और अलामत है या जा रहा है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं,
मिसाल के तौर पर इस कमरे की सफाई की जा रही है। इस जुमले में गौर करें तो ई जा रही है जैसा वर्ड पाया गया है, इसलिए आंख बंद करके आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पेसिव वॉइस तस्वीर करें। वे लोग मारे जा रहे हैं, यहां पर देखो ए जा रहे हैं पाया गया है, इसलिए यह जुमला भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पेसिव वॉइस का होगा। इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, इस जुमले में गौर कीजिए तो जुमले के आखिर में या जा रहा है पाया गया, इसलिए यह जुमला भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पेसिव वॉइस का होगा। सो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि उर्दू और हिंदी जुबान के किस तरह के जुमलों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पेसिव वॉइस तस्वीर करेंगे और किस तरह के जुमलों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पेसिव वॉइस तस्वीर करेंगे। इन तमाम बातों को समझने के बाद हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों टेंसेस के स्ट्रक्चर को समझें। स्ट्रक्चर मैंने यहां व्हाइट बोर्ड पर ऑलरेडी लिख दिया है, सिर्फ आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना है और इसे ज़हननशी करके इस पर हजारों जुमले बोलकर प्रैक्टिस करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आप सब्जेक्ट लाना चाहें तो थर्ड फॉर्म के बाद बाई प्लस सब्जेक्ट ला सकते हैं और अगर ना लाना चाहें तो कोई बात नहीं है। उर्दू और हिंदी जबान का कोई भी ऐसा जुमला जिसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पेसिव वॉइस समझ लें तो चाहिए कि सबसे पहले उस जुमले के ऑब्जेक्ट को तलाश करें और सबसे पहले नंबर पर ऑब्जेक्ट रखें। फिर देखें कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल, वाहिद है या जमा। अगर वाहिद है तो इसको प्रयोग करिए और अगर जमा है तो आर को प्रयोग करिए और अगर वाहिद मुतकल्लिम है तो फिर एम को इस्तेमाल करें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपको लफ्ज बीइंग को प्रयोग करना है और जो भी काम किया जा रहा है उस काम के वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है और इस तरीके से जुमले को आप आसानी से बना सकते हैं। मसलन यहां पर मैंने एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा है और फिर उस सेंटेंस को पेसिव वॉइस में चेंज करके दिखाया है और किस तरह हमने एक्टिव को पेसिव में चेंज किया है। अगर ये स्ट्रक्चर आपके जहन में हो तो बड़ी आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। आपको एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में चेंज करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। स्ट्रक्चर के माध्यम से आसानी से हम इस एक्टिव सेंटेंस को पेसिव में बदल देंगे। एक्टिव का सेंटेंस है समबडी इज पेंटिंग द डोर, कोई बंदा दरवाजे को पेंट कर रहा है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग पेंटिंग का काम चल रहा है, इसीलिए ये जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर हम इसका पेसिव वॉइस बनाना चाहें तो पेसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस से बनाया जाता है। उसका तरीका यह है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट की जगह रखते हैं। सबसे शुरू में सब्जेक्ट आता है, लेकिन पेसिव वॉइस में चूंकि सब्जेक्ट आता नहीं है इसीलिए सब्जेक्ट की जगह पर नायब फाइल यानी मफूल बिही ऑब्जेक्ट को लाएंगे। और इस जुमले में गौर करें तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर है, इसीलिए सबसे पहले डोर को शुरू में ले आएंगे और डोर को देखेंगे कि ये एक है या एक से ज्यादा। अगर एक है तो इज लाए, एक से ज्यादा है तो आर लाए। तो हमने गौर किया कि डोर एक है, इसीलिए हमने यहाँ इसका प्रयोग किया और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने बीइंग लाया और उसके बाद पेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म लाया, तो पूरा जुमला बन गया द डोर इज बीइंग पेंटेड। Dear students, let's have a look on present perfect passive voice structure in example. चलिए अब हम present perfect passive voice के structure और example पर एक नजर डालते हैं। So dear students, जब भी उर्दू और हिंदी जबान का कोई ऐसा जुमला आपके सामने आए जिसमें आप अलामतों और तारीफ के पेश नजर ये समझ जाएं कि ये present perfect passive voice का जुमला है, उस जुमले को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले उस जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट को तलाश करें और सबसे पहले नंबर पर ऑब्जेक्ट को रखें। फिर देखें कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल। अगर सिंगुलर है तो हैज को लाएं और अगर प्लुरल है तो हैव को लाएं। उसके बाद बीन का जरूर इजाफा करेंगे, बिना बीन का प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस नहीं बन सकता है। उसके बाद आप वर्ब के थर्ड फॉर्म को प्रयोग करें। याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस और प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस के दरमियान हद फासिल लफ्ज बीन ही है, क्योंकि दोनों टेंसेस के अंदर मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है, पेसिव वॉइस में भी और एक्टिव वॉइस में भी है। दोनों के अंदर हैवेज आता है, दोनों के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आते हैं। लिहाजा कोई ऐसा लफ्ज जो कि एक्टिव के मुकाबले में इजाफा है पेसिव में, वो लफ्ज है लफ्ज बीन। सो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को प्रयोग करेंगे। अगर आप जुमले में सब्जेक्ट को जिक्र करना चाहें तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लफ्ज बाई का इजाफा करके सब्जेक्ट को ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने एक एक्टिव वॉइस दिया है,
फिर उस एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में चेंज करके दिखाया है। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है somebody has painted the door, किसी ने दरवाजा को पेंट कर दिया है। यहां पर एक मुकम्मल शुदा काम की बात की जा रही है। दरवाजा को किसने पेंट किया है वो यहां पर फिलहाल तो somebody है, लेकिन इसको हम मजहूल अंदाज में पेश करते हैं कि the door has been painted, कि दरवाजे को पेंट किया गया है। करने वाला कौन है मालूम नहीं। अगर आप करने वाले को जुमले में जिक्र करना चाहें तो जिक्र कर भी सकते हैं। चुनांचे आप बोलेंगे द डोर हैज बीन पेंटेड बाई समवन, तो बाई के बाद आप समवन का इजाफा करें या समबडी का इजाफा करें और इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाए। सो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको बखूबी समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस को प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस में किस तरह चेंज करेंगे एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पेसिव वॉइस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पेसिव वॉइस में क्या फर्क है। चलिए जरा सा कुछ जुमलों को बोल करके मश्क करके देखते हैं। ये स्टूडेंट्स अगर मुझे ये कहना है कि जैद कमरे की सफाई कर रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस है। जैद इज क्लीनिंग द रूम, इसको आप पेसिव वॉइस में चेंज कीजिए कि कमरे की सफाई की जा रही है। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय जैद। इसी तरीके से कहना है खुर्शीद सर हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस है। खुर्शीद सर इज टीचिंग अस इंग्लिश, और इसी को पेसिव वॉइस में चेंज कीजिए कि हमें अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। वी आर बीइंग टॉट इंग्लिश। इसी तरीके से वे लोग अंग्रेजी बड़ी रवानी के साथ बोल रहे हैं। दे आर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, और इसी को पेसिव अंदाज में बोलिए कि इंग्लिश उनके जरिए रवानी के साथ बोली जा रही है। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन फ्लुएंटली बाय देम। इसी तरीके से ये कहना है कि मेरा दोस्त क्रिकेट खेल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस है। माय फ्रेंड इज प्लेइंग क्रिकेट, अगर पेसिव वॉइस में चेंज करना है कि क्रिकेट मेरे दोस्त के जरिए खेला जा रहा है तो फिर जुमला होगा द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय माय फ्रेंड। इसी तरीके से अगर हमें यह कहना है हम लोग एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग एन एप्लीकेशन, और एक एप्लीकेशन हमारे जरिए लिखा जा रहा है। एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन बाय अस। और ये स्टूडेंट्स चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के भी कुछ मजीद जुमले बोलकर मश्क करते हैं। जैद ने राशिद को कत्ल कर दिया है। जैद हैज किल्ड राशिद, राशिद को जैद के जरिए कत्ल कर दिया गया है। इसकी अंग्रेजी आप बनाइए, राशिद हैज बीन किल्ड बाय जैद। उन लोगों ने मुझे परेशान किया है। दे हैव डिस्टर्ब्ड मी, मुझे उनके जरिए परेशान किया गया है। आई हैव बीन डिस्टर्ब्ड बाय। इस तरीके से अगर मुझे ये कहना है कि किसी ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया है तो इंग्लिश होगी somebody has stolen my mobile। इसी को पेसिव वॉइस में बताएं कि मेरा मोबाइल किसी के जरिए चोरी हो गया है। My mobile has been stolen by someone। उन लोगों ने दरख्त को काटा है। They have कट द ट्रीज, और दरख्त उनके जरिए काटे गए हैं। द ट्रीज हैव बीन कट बाय देम। और डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप ढेर सारे जुमले को बोलिए और खुद मश्क कीजिए। याद रखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नोबडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कि मश्क इंसान को महान बना देता है। इस दुनिया में कोई बंदा माँ के पेट से महान बनकर नहीं आता है। हाँ, प्रैक्टिस ही वो चीज़ है जिससे आप किसी भी फन के अंदर फनकार बन सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स आप कलम उठाइए, कापी उठाइए और कम से कम 50 जुमले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पेसिव वॉइस के और 50 जुमले प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस का बना लीजिए। जब आप तहरीरी शक्ल में कोई जुमला बनाते हैं तो न सिर्फ आप उसे कॉपी में लिखते हैं बल्कि आप उसे अपनी ज़हन में भी लिखते हैं। इसीलिए लिखने से और ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ आप इसकी मश्क ज़रूर करिए। और चलिए इस वंडरफुल क्लास को हम एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में समझते हैं कि रेमोन मर्फे ने इस क्लास को कैसे समझाया है और इन दोनों बहस को किस तरह साहिब किताब ने क्लियर किया है। लेकिन याद रहे कि यूट्यूब और फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होने वाली है। मुकम्मल क्लास आपको यूट्यूब और फेसबुक पर शेयर नहीं की जाती है। और डियर स्टूडेंट्स अगर आपको चाहिए कि आप
इस जैसे ज़बरदस्त क्लास से आप ABCD से लेकर के एक टीचर बने, जीरो से हीरो बने, तो आए मेरे एप्लीकेशन IIEL पर। अभी प्ले स्टोर पर जाएं और IIEL मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से स्पीकिंग प्लस अंग्रेजी डिप्लोमा का कोर्स परचेज करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश की दुनिया को इम्प्रूव करें और एक मुकम्मल टीचर और ट्रेनर बने, एक बेहतरीन स्पीकर, राइटर और रीडर बने। अगर आप यूट्यूब और फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पर प्लीज़ फॉलो कर लें और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।